This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab. Hello. Dr. Arvind Kushwaha, All India Institute of Medical Sciences, Nagpur. And again, he's back with a bang, I would say. Flip and flop because of COVID-19, this pandemic, whether it is World Health Organization or the so-called Fauci who is dictating America and the world, the CDC and FDA are nothing but in his trumpets. So what happened to them? Did they go against science and logic? The world has realized, the people have come together now. Country after country, protest after protest, the mandates falling off. People are having a sigh of relief. The people's might, that is what democracy is all about. लोकतंत्र जब प्रजा की आवाज और प्रजा विरोध करती है तो देश और एक देश जुड़ते जा रहे हैं, जहां पर जो हमारे को डराए धमकाए कोरोना के मैंडेट्स के वजह से, इंग्लैंड से लेके स्वीडन, स्पेन, एल सल्वाडोर, अब क्या बोलूं मैं आपको, कनाडा, कनाडा में क्या हो रहा मैं आपको बताता हूं, इंग्लैंड में क्या हुआ मैं बताता हूं. కరోనా భయాన్ని ఛేదిస్తున్నటువంటి ప్రజా ఉద్యమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించే ఒక పెద్ద ఉద్యమంగా ఈ కోవిడ్-19 నియమ నిబంధనలపై ప్రజా పోరాటం, తద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించేటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి సువర్ణ అవకాశాన్ని ప్రపంచం రచిస్తున్న వేళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసినటువంటి పాలకులు, వారితో అనుబంధంగా ఉండేటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అధికారులు, వారికి తోడైనటువంటి మీడియా, శాస్త్రీయమైనటువంటి ఆధారాలతో చూపించినటువంటి మా ఛానళ్లను అతిథులను ఇబ్బంది పడుతున్న వేళ ఈరోజు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనే షోతోన అక్కడ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గాని, అమెరికాలో ఫౌసీ, డాక్టర్ ఫౌసీ నడుపుతున్నటువంటి సిడిసి, ఎఫ్డిఏ కుప్పగూలేటువంటి సమయం వసనమైనదా? अरे ये रोज चर्चा. तो यही हमारी चर्चा है. क्या हो रहा है? प्रजा विश्वास लोकतंत्र में वापस आ गया. जो डर लोगों के ऊपर तमाया गया, अब वो डर राजनीतिक दल, अधिकार और उनके संबंधित वार्तालाप करने वाले उनके ऊपर हो जा रहा है क्या? तो हम वही बताने जा रहे. जो स्वास्थ्य की चिन्ह मानते हैं हम दुनिया की, WHO या फौसी, सीडीसी, एफडीए, क्या होने वाला है उनके साथ भविष्यवाणी हमारे डॉक्टर अरविंद कुशावा देंगे आपको, क्योंकि वो पहले से बोलते आ रहे, जब ओमिक्रॉन आया हमारी स्वस्थ सही सलामत, हमारी सहज रोग निरोधक शक्ति को बढ़ावा देने को, जो अंदर है उसको बुलावा देने को ये ओमिक्रॉन आएगा. उनकी एक भविष्यवाणी थी, तो आज it is coming true, whatever he has professed some time back on December 16th. Almost a month Yeah. back, sir. More than a month back. ये इसको एनिमी करके पेश किया गया था, उसको एक दुश्मन की तरह पेश किया गया था, और मैंने आपको उस दिन बोला था कि ये दोस्त निकलने वाला है, ये is going to be our friend, and that's why in that show we called him as frenemy, friend and enemy together, so enemy for WHO and friend for us. Wonderful. It was December 16th when Dr. Anjaliki Coates is a good friend of Dr. Arvind Kushwaha. She appeared for the first time. She was Omicron discoverer. She said very mild. You have to diagnose through clinical symptoms. You should become a family practitioner, not the corporate. And then with that, once you have clinical symptoms, only after that genome sequencing, no RT-PCR, no rapid antigen. That's what she told. That is what is happening. South Africa woke up very early. That's very early. South Africa.
Yes, even on January 6th also she came and she broke the world, stating that the province which witnessed the first Omicron case, it is free of Omicron almost. January 6th. Now today we are 31st January. Yes, sir. Doubting. Yeah, yeah, sure. So for today, we'll have basically how the policy at the highest levels, which has Yeah. influenced the 7 billion Yeah, I'll make you a population. presenter. I'll make you Yeah, a sir. Please, presenter. please Yeah, do, please before do. that, I'll just show you why Dr. Arvinda Kushawa was very methodically professing what he thought is right on December 16th itself. He was very confident, and we are showing you how the world is falling, how the great democracies, whatever. The problem, hey? How the world was trying to fall in line. I'm trying to share the screen, and the screen doesn't move. This is what happens. Show is already hacked. Still, no mind, no problem. No problem. You do whatever you feel like, but we are going to come back. It says no available windows. Shockingly, where did it go? Yep. We will come back. Don't worry. Don't go away. We're trying to get you, fetch you the videos. Why the world is trying to look at us. Before I play the video, let me just have a word from Dr. Kushawa. Why do you think, before he gives us the PowerPoint presentation, why do you think the world is slipping into the democratic mode from slavery, from fear? Sir, there's a very old saying that you can fool some people for some time, you can fool some people all the time, you can fool all the people also sometime, but you cannot fool all the people all the time. So that is what has led to this point, that you have been trying to fool the whole world for all the time for last 2 years, and now you have even kind of blocked the scientists, the doctors from speaking the truth because the media was also compromised. So how Yeah, long can you do it? You know, people also can see the game plan, and that's how the things have started. And now the movement is gaining momentum, which yeah, is for the science, for the truth, and for freedom. All the three things. The momentum is going to only gather more speed, and soon the pandemic, the panic and the fear of pandemic will be worn out. fear will go out. It is freedom, it is truth, and science going to rule the world. You can't fool all the people all the times. So I'm just playing. This is the earlier video of England, how England has come out of these mandates after Spain, then Sweden, Denmark, and the world over. What is happening? Yes, sir, please. Spain, yeah, a lot of countries have already removed this mandates. Even US, lot many states have removed the vaccine mandates, vaccine passports, and other things. India is still trying to play hide and seek and trying to fool Yeah, people for how long they can do. audio is not correct. Yeah. Told you, Nasar, they just play with havoc. And allow Plan B regulations to expire. As a result, from the start of Thursday next week, mandatory certification will end. Organisations can, of course, choose to use the NHS COVID Pass voluntarily, but we will end the compulsory use of COVID status certification in England.
From now on, the government is no longer asking people to work from home. And people should now speak to their employers about arrangements for returning to the office. And having looked at the data carefully, the Cabinet concluded that once regulations lapse, the government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere. So this is for you, and then I'll give you another one too. What is happening around the world? ये इंग्लैंड का था, इंग्लैंड में सब कुछ खत्म कर दिया, बंदी कर दिया, पासपोर्ट से लेके सब कुछ। भारत क्यों जूझ रहा है ये बताना चाहिए। और एक देखिए, ये एनसी मैन, ये अमेरिका का है, ये बोलता है कि ये फॉक्स न्यूज से हमको मिला, मैन वुड रादर डाई फ्री देन गेट वैक्सीन नीडेड फॉर लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट। उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वहां पर सरकार या ये संस्थाएं उनको मजबूर और ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन वो बोलता है कि मैं I would die free rather than get vaccinated। तो ये बड़ी खबर है। इस तरह के काफी चीज हो रहे हैं दुनिया भर में, हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए ये हमारी शो आज की महत्वपूर्ण है। वो बोलता है कि हमको आजादी चाहिए। ये देखिए, कर्मा स्ट्राइक सेज इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स एज कैनेडियन पीएम हाइड्स फ्रॉम एंटी वैक्स प्रोटेस्ट। ये भी हम वीडियो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरी चाल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी लोग। वो ये इसको सपोर्ट करा, उसको सपोर्ट करा। जब लोकतंत्र को लोग बाहर आ रहे, लोकतंत्र के लिए, आजादी के लिए, और क्या चाहते हैं? ये चाहे आप बंद होके रहना चाहते हैं भारत के लोग? आप बोलिए, कितने दिन हमारे पैसे से हमारे को डैश डैश बनाया जा रहा है। ऐसे रोग को जो 99% कोई इलाज की, बिना इलाज की तो आप बाहर आ सकते हैं। तो अब देखिए, ये देखिए, ये महान। During the pandemic, Dr. Fauci has handsomely profited from his federal employment, royalties, travel perks and investment gains। ये हम नहीं बता रहे साहब, देखो CEO openthebooks.com। हम इतने फेयर है हमारे चैनल में, हमारे अतिथि गण भी, वो लोग खाली वैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार के साथ बात करते हैं। तो इसीलिए ये चैनल आज, अब हम देखते हैं ये हमारे कनाडा में क्या हो रहा है। आप देखिए, thousands in Canada, hundreds of truckers pour into Ottawa to protest vaccine requirements। Canadian Prime Minister Justin Trudeau moved to secret location। अब देखिए क्या आपत्ति आ गई, क्या हमारे देश में भी होने वाला है? A large-scale protest opposing COVID vaccine mandates are erupted in Canada। After protests converged on Parliament Hill, Canadian PM Justin Trudeau and his family were shifted to a secret location। देखिए, जब लोग आते हैं बाहर, thousands of truckers flock to the streets of capital city Ottawa against vaccine mandates to cross the border। इस स्क्रीन पे देखिए आप, started as a small freedom convoy but has now turned into a large demonstration। और स्वातंत्र्य कावाली, करोना नियम निबंधन वद्दू, हमको ये कोरोना के मैंडेट्स नहीं चाहिए, हमको आजादी चाहिए। जो कनाडा protesters gather in front of the parliament। This convoy is all about freedom. It's not only with the truck drivers, it's actually for every single person. You, me, buddy down the road, it doesn't matter. It's all about your free choice. That's what it should be. Like I said, if you're vaccinated, cool. You did it. Well, most people did it because of work, but you know, you should do it off of free will, off of your own choice। उन्होंने उनको किया, खाली छोटे माइनॉरिटी है, लेकिन जब इतने लोग आ गए तो वो आपको कुछ नहीं कहते। Truckers views shows their risk not only to themselves but other Canadians। साइंस नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। अल्बर्टा स्टेट में भी देखिए, जो भी आप देख सकते हैं,
जाने कितने लोग across the border, and it makes things tough, that's for sure. Even being around Ontario, things are difficult. You can't get food, you can't get water, you gotta have a mask. If you don't have your mask, you can't go into stores, you can't do anything, and just like things to be normal again. हम कुछ नहीं कर सकते मास्क के बिना। इसके बिना क्या है ये आजादी चाहिए। ये लोग कैनेडियन पार्लियामेंट सार्वजनिक पैमाने पर अपना विरोध प्रकट किया प्रधानमंत्री मोदी। क्या भारत जाग उठेगा? क्या हो रहा देखिए, अमेरिका और कनाडा ने पाबंदी लगाई, उसके खिलाफ आजादी की लड़ाई कनाडा में शुरू हुई। अब आप ही देख चुके हैं स्क्रीन पे क्या हो रहा है दुनिया भर में। हम ऐसे ही चीज आपको बताएंगे ताकि आप समझ सके। इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या अमेरिका हो, जिस तरह की मैंडेट्स हमारे ऊपर थमा रहे हैं, उसके खिलाफ आज पूरा दुनिया अपना विरोध प्रकट कर रहा है। विरोध ही नहीं, किस तरह वो लोग पार्लियामेंट को भी वहां पर पार्लियामेंट के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक अपना विरोध कर रहे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर। यस सर। I hope the screen is visible, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to talk. Yes, sir. It's full screen now. Yeah, it's full screen, sir. कुशवाहा जी। So, हाँ जी. Sir, it is full screen. कुशवाहा जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। Okay, okay. Just a sec. ऑडियो प्लीज। Okay, okay. Wait, wait. Sir. Your audio. आवाज नहीं आ रही सर। Can you hear me now, sir? अभी नहीं आ रहा सर आवाज। अरे सर फुल यहाँ स्क्रीन से हुआ। तो WHO and CDC flip flops. Communicating hear me now, complex science in real time about a new virus is not always easy, but we believe it's part of our duty to the world and we can always do better. We welcome constructive debate and that is how science advances. WHO advice will continue to evolve as new information becomes available. New information कैसा हमको डैश डैश बनाने के लिए, डर जताने के लिए, to create fear, మనను భయపెట్టడం, అదే కొత్త ప్రపంచం ఆర్డర్. Sir, your voice. Can you hear me your now? audio, sir. Yeah. Or else you come back again, sir. Okay. I'll make you presenter again. Okay. Maybe there is some jinx in your voice. This happens, sir. Don't worry. Such an important subject. एक बार बात करिए साहब। Can you hear me now, sir? आवाज नहीं आ रहा सर। I don't know why, because it's not mute. I can hear you very well. आपके यहाँ प्रॉब्लम है सर? क्या हुआ सर, अचानक आवाज गया? I am able to hear you. नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा। एक बार बात करिए। Can you hear me? नहीं सर। Okay. Unfortunately, the voice is gone. एक बार ठहरिए, मैं आपको म्यूट करके फिर अनम्यूट करता हूं। अब बात करिए सर। Hello, can you hear me? नहीं सर, there's some serious problem with the voice. Can you rejoin sir? Yeah, I'll rejoin. क्योंकि ये सब नाटक, ये हैकिंग की, एक बार रिजॉइन कीजिए, नो प्रॉब्लम।
World Right. wants to listen to you now because you have come up with wonderful presentation again. I tell you, don't go away. In spite of all these technical hitches, he's going to come back, join us, and present why this is happening across the globe. What is happening with the world now? Why they are against WHO mandates or the country's mandates? Why people are demanding freedom? And how long these illogical things without science, without logic, can force us upon? The science and logic and freedom is very clearly said, science, truth and freedom. हमको वैज्ञानिक दौर पर जाना चाहिए, साथ में सच्चाई जानना चाहिए और उसके साथ हमारे को आजादी चाहिए. విజ్ఞానము, వైజ్ఞానం, దాంతో పాటు నిజంతో పాటు మాకు కావాల్సింది స్వతంత్రం. మేము స్వతంత్ర జీవులుగా బతకాలనుకుంటున్నాం అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కెనడాలో, బ్రిటన్లో, बात करिए सर. स्वीडन. अभी सुन रहे हैं सर? Can you hear me now? सर आपका वो निकालिए सर, नहीं तो. Can you hear me now, sir? आपके सेटिंग्स में देखिए सर, आपके सेटिंग्स में या कुछ इंटरफियर होगा. Settings में sir, computer audio is on. That is what You it are is talking saying. well all of a sudden. What happened, sir? It is looking all right here, sir. You are connected to audio, but what is happening? Why am I not able to? अब फिर अनम्यूट किया मैं. अब बात करिए सर. Can you hear me now, sir? This is big news coming from Dr. TSPR channel. Again, the channel gets hacked. And such an important day, entire world is looking towards this show. I'll make you a presenter, sir. देखिए एक बार. I've made you a presenter. देखिए एक बार. All right. I'm trying to do that. Can you see? Can you see my presentation? Can you see the presentation, बात करिए sir? सर. Can you hear me? Yeah, it's full screen now. एक बार try to speak, sir. Can you That's hear me, what. sir? This is really. Can you We hear are me? lift, sir. No, I'm not muted. Very unfortunate. You just crisscross सब देखेंगे ये. Sir, can you hear me? No. Just run the slideshow सब. Slide after slide. PowerPoint देखते हैं हम. Okay. Compromise science and public health, politicize science and public health, monetize control of science and medicine, modelers, panic, fear, lockdown, school closure, masks, vaccines, only way out. This is how they have done it. Next, sir. Presentation to all lives. Yeah, I think you have to come back, sir. No, such an important presentation. Yeah, sir. I think I'll come back, sir. Don't worry. I'm trying to just. I don't know what's gone wrong, You can't hear me, na, sir? No, again, I'm trying to get you out of the presenter mode. I'm trying to check the audio aspect. What has happened to the audio? You are connected. आप एक बार audio बंद करके फिर on करिए सब. नहीं तो हम काम करते हैं सर, आपका मोबाइल से हम, क्योंकि I'll make you a presenter through your mobile. What to do, as we have done for Amitabh Banerjee ji. क्योंकि what is happening here? क्यों आपका आवाज? Yeah, through mobile you connect, sir.
Can you see me now, sir? Can you see me now, sir? Can you see me now, sir? Yes. उसका आवाज बंद करिए सर. अदर इक्विपमेंट यू क्लोज दैट. उसका आवाज बंद करिए, उसको वहां से प्रेजेंटेशन कीजिए. उसका साउंड ऑडियो बंद करिए उसका. नहीं ऑडियो आपका ये बंद हो गया. इसका नहीं सर, उसका बंद करिए. अच्छा, ये ऑडियो खोलिए. या नाउ यू स्पीक सर. इसके पहले जो बात किया. Can you hear me? Yes sir, now we can hear. What I suggest you is, yeah. Just a sec. ये जो cross the other one should be closed. Other audio. Friends, don't go away. These are the best methods to hack our show, but don't go away. I promise you this will be the best shows to get people out of this fear. We will not go away. Come whatever may, we will present. ये जो हैंग हो रहा सर ये. Can you hear me now? या और एक को बंद करिए अभी. मोबाइल को अब बंद बात करो करिए. ना। अब ये इससे बात किससे इससे हो रहा ना अभी. हाँ, मैं तो अभी म्यूट किया हुआ है सर मोबाइल को तो ओरिजिनल इससे आ रहा. अब बात करिए. अब बात करिए सर. नाउ यू स्पीक. हेलो. या और थोड़ा आवाज बढ़ाइए सर. हेलो. मेरे ख्याल से इसका ही आवाज आ रहा. अब there are two screens available on this your GoToMeeting ना सर. हाँ. So this thing एक को बंद कर दीजिए सर, if you can. Is it okay now? आपका स्क्रीन बंद हो गया. Okay, that is the problem. अब स्क्रीन ऑन करिए. नहीं सर, व्हाट यू डू इज यू स्विच स्क्रीन. आप ये स्क्रीन ऑन करिए, दूसरे का वो ऑडियो बंद करिए. ये जो हैंगिंग चले जाएगा, दूसरों का ऑडियो बंद करिए. इज इट क्लियर नाउ? अब बात करिए. दोनों बंद है सर, दोनों भी बंद है. एक सेकंड है, एक सेकंड. हेलो, कैन यू हियर मी? नहीं इसका सर इसका वीडियो बंद करिए. देखिए इसका वीडियो बंद करिए. इसका वीडियो बंद करिए आप. तो सब कुछ चले गया सर. एक सेकंड सर, आई विल कम बैक. Can you hear Yeah, me now now? you are speak. Yeah. Okay, that's good. I'll make you see. I told you ना, this is what hacking. Okay. वो कंफ्यूज हो गया अभी. अब बात करिए सर. अब इमीडिएटली आप प्रेजेंट करना शुरू कीजिए. Sir, can you see the this thing? यस इसका पहले का फर्स्ट से आई है. Right, थोड़ा sir, आवाज right. थोड़ा ऊंची आवाज में बात करिए सर. ठीक है सर, ठीक है सर. क्योंकि हम उसको कंफ्यूज कर दिए. फर्स्ट से आई है. थोड़ा जम के बात करिए सर. कर रहा हूँ सर. अभी इसका प्रॉब्लम हो गया सर. एक सेकंड. पीछे नहीं जा रहा, आगे जा रहा है. Is it okay? Yeah. Now it's Yes sir, fine? please go ahead. Yes. Yeah, okay. Let's go ahead. So basically, this pandemic has been a story of flip-flops by the premium agencies which have controlled the pandemic or controlled the direction of the pandemic, that is the World Health Organization and the CDC Atlanta. Most of the things emanating from these two agencies have been copied verbatim
or copy pasted into the national guidelines of the whole world. And that is where the whole problem has arisen, because they have been giving very mixed messages, or they have been always changing their guidelines and giving wrong messages, and therefore we didn't know what to do, and the guidelines kept on changing as the pandemic progressed. So what was right in the beginning became wrong, absolutely wrong, maybe few months later, and what was absolutely wrong became right as the pandemic progressed. Sometimes they were told कि आपने मास्क नहीं पहनना है, कभी बोला है कि जनरल पब्लिक को जरूरत नहीं है, बाद में बोलते हैं सबको जरूरत है, बाद में बोलते हैं क्लॉथ मास्क जरूरी नहीं है, अभी आप N95 पहनिए, सबको N95 पहना दिया। तो पूरा दुनिया को एक बहुत ही मैसेज गलत गया, जिससे कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या इसमें सही होगा, क्या गलत होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। और इसके चक्कर में क्या हुआ कि ये जो दो एजेंसीज हैं, इन्होंने जो इस पैंडेमिक के साथ किया है, इससे हमारी पूरा साइंस और पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई। हमारा जो बेसिक्स था साइंस का, बेसिक्स पब्लिक हेल्थ का पूरा जो है इन्होंने हिला दिया। और जो लोग हम पब्लिक हेल्थ के जो लोग थे, जो साइंटिस्ट लोग जो थे, वो ऐसे लगा जैसे कि कोई नया साइंस बन गया, कोई नया पब्लिक हेल्थ बन गया। और जो हमने कभी पैंडेमिक डील नहीं किया, किसी एपिडेमिक का कभी सामना नहीं किया, ये कॉम्प्रोमाइज हो गए। दोनों फील्ड जो है साइंस और पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गए, क्योंकि जो जो साइंस यहाँ से निकल रहा था वही साइंस कहला रहा था, और भी कोई और दूसरा बात करता था उनसे अलग, तो वो साइंस नहीं था। वो एक तरह से वो बोलते थे कि ये जो है गलत है, इसको साइंस हम नहीं कह सकते। तो और दूसरा जो इशू हुआ इस पूरे चीजों के साथ, वो हुआ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ साइंस एंड पब्लिक हेल्थ। पैंडेमिक जो कि एक मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का डोमेन है, अल्टीमेटली वो पॉलिटिशियंस के और एडमिनिस्ट्रेटर्स के और आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में दे दिया गया कि आप इसको मैनेज करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट लगा दिया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा दिया। इस कारण से पूरा का पूरा जो कह लीजिए डायरेक्शन था, दैट वाज अंडर द नॉन मेडिकल एंड नॉन पब्लिक हेल्थ पीपल, दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग इट। और जो सबसे खराब चीज जो इस दौरान हुई, इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, वो हुआ साइंस और मेडिसिन का जो मोनेटाइजेशन हो गया। हम तो यहाँ हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन के ऊपर काफी चर्चा करते थे, और जो मोनेटाइजेशन किया गया साइंस और मेडिसिन का, वो सबसे खराब चीज हुआ। यानी कि आप कोई भी गलत डेटा, गलत पेपर, गलत एविडेंस लेकर के आप पब्लिश कर सकते हैं, और वही जो है दुनिया उसको फॉलो करेगी, चाहे वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हो, चाहे वो वैक्सीन की एफिकेसी हो। सारे को सारे के पैसे देकर के जो बड़े बड़े फार्मा कंपनीज थे, उन्होंने उसको जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया, गलत डेटा के साथ, गलत साइंस के साथ। और वही जो है पूरे दुनिया के लिए एक तरह का वो बन गया जैसे कि वही सच है, और वही सच नहीं होने के कारण इतना दुनिया को तकलीफ झेलना पड़ा। और जो एक जो समस्या आया इस पैंडेमिक के दौरान था, वो था मॉडलर्स, यानी कि जो लैपटॉप पे बैठ करके पब्लिक हेल्थ जो प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं, मॉडलिंग कर देते हैं कि अगर दुनिया का पॉपुलेशन इतना है तो इतना लोग हो जाएगा बीमार, इतना लोग बीमार होगा तो इतना लोग मर जाएगा। जैसे कि इंडिया को जब शुरुआत में बताया गया कि इंडिया का पॉपुलेशन तो 1.3 बिलियन है, और अगर यहाँ पे डिजीज फैला जो कि पूरी तरह से फैलेगा, तो अगर 1% भी मोर्टेलिटी हुआ, तब भी आपके यहाँ जो है डेथ्स जो है वो 13 मिलियन डेथ्स जो है हो सकती हैं। ऐसा जब बताया गया इंडिया को, तो इंडिया ऑब्वियसली डर गया होगा, और उसके कारण जो पैनिक और फियर जनरेट हुआ, लॉकडाउन्स लगे, स्कूल बंद हो गए। ये जो मॉडलर्स थे, जो लैपटॉप पब्लिक हेल्थ वॉरियर्स या लैपटॉप पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने भी बहुत अपना योगदान दिया इस पूरे पैंडेमिक को गलत दिशा देने में। और हमें ये बताया गया कि भाई मास्क जो है और वैक्सीन है, वही इस पैंडेमिक से निकलने का रास्ता है। जबकि आज हम 2 साल के बाद ये समझ रहे हैं, जो कि हमारी पुरानी जानकारी थी, कि नेचुरल इम्यूनिटी ही एक रास्ता रह जाता है जब ऐसे नए पैथोजेंस आते हैं। और नेचुरल इम्यूनिटी ही है जिसके कारण आज ये पैंडेमिक अपने नीचे की तरफ जा रहा है, या खत्म हो रहा है, या मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, ऑलरेडी एंडेमिक डिजीज बन चुकी है। हम अभी भी मानने को तैयार नहीं, वो एक अलग बात है। तो ये एक जो पूरा हुआ, इसके कारण जो पूरा दुनिया का जो नुकसान झेलना पड़ा, वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही खतरनाक था। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है, मैं बेसिकली उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ
जो ऐसे जो लोग हैं जिनकी की जाने गई, जिनको की गलत पॉलिसीज पैंडेमिक कंट्रोल की जो प्रैक्टिस की गई और पूरे दुनिया भर में, उनके कारण जो कई लोगों की जाने गई, गलत ट्रीटमेंट, गलत प्रोटोकॉल्स, आपके लॉकडाउन के कारण लोगों को दवाइयां नहीं मिली, लोगों को इलाज नहीं मिला, और ऐसे लोग जो मारे तो नहीं गए लेकिन उनकी जिंदगियों को बहुत असर पड़ा, क्योंकि ये जो लॉकडाउन और ड्रैकोनियन मेजर्स लगाए गए उसके कारण लोगों की जिंदगी बंद हो गई, लिटरली दे वर क्लोज डाउन, मतलब वो घर में कैद हो गए, वो कैदी बन के रह गए, उनके पास काम नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही उनके पास हेल्थ रिसोर्सेज है। तो ये जो है ऐसे लोग जो कि बच गए, तो उनकी जो जिंदगियां भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई, उनको मैं ये डेडिकेट करता हूँ। और कई लोग जो कि वैक्सीन के एडवर्स रिएक्शंस के कारण मारे गए, जो कि बिल्कुल भी गैर जरूरी था, जिसका कोई जरूरत नहीं था, वैक्सीन इतना जल्दी में बना करके और पूरे दुनिया के ऊपर थोप देना, और उसके बाद जो है इसके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं, इसकी सेफ्टी डेटा एडिक्वेट ना होने के कारण, जल्दी से बनाने के कारण, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स नहीं थे, और बहुत छोटे छोटे ट्रायल्स के बाद इन वैक्सीन को लॉन्च किया गया, और उसके जो एडवर्स रिएक्शन के कारण बहुत सारे मौतें हुई। और जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक स्टडी था जिसमें कि सीडीसी का जो VAERS सिस्टम है, वॉलंटरी एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसके आधार पे उन्होंने बताया है कि करीबन 1.5 से 4 लाख मौतें सिर्फ यूएस के अंदर वैक्सीन और वैक्सीन से रिलेटेड जो है कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा पेंडेमिक हमें बताया गया कि वायरस के कारण मौतें हुई, वो ऐसा नहीं हुआ। सीडीसी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 75% ऑफ डेथ्स वर नॉट ड्यू टू वायरस। ये तो उनका एक खुद का पब्लिक एडमिशन है। आप सोच लीजिए, मेरे हिसाब से तो 75% से भी ज्यादा जो है मौतें वो है सिर्फ वायरस के कारण या पैंडेमिक के कारण नहीं हुई है। वो जो है काफी सारे और जो बीमारियां थी, 3-3, 4-4, 5-5 बीमारियां लोगों को थी, एल्डरली थे, कोमॉर्बिड थे, उनको 3-3, 4-4 बीमारियां होने के कारण उनको ये बीमारी से मरना पड़ा, और वो गलत मैनेजमेंट के कारण भी मरना पड़ा। जो प्रोटोकॉल्स थे वो बहुत ही पुअरली डिजाइन थे, और उसके कारण भी बहुत उसमें मौतें हुई। और मैं ये प्रेजेंटेशन उन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ, जो इस पूरे ऑनस्लॉट के दौरान, जबकि उनको आवाज को दबाया गया, सब कुछ दबाया गया, लेकिन वो अपने जो है उनके जो बिलीव्स थे, उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनकी जो टीचिंग थी, जो साइंस थी, उसके साथ वो खड़े रहे, और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। भले ही उन्हें मीडिया में आवाज नहीं उठाने को मिला, लेकिन डॉक्टर रेड्डी जैसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों ने हमें जो एक फोरम दिया जहाँ पे हम अपनी बात कह सके, और हम अपनी साइंटिफिक और जो बातें थी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड थी वो हम कह सके। इंडिपेंडेंट मीडिया जिसमें आप भी लोग हैं, और डॉक्टर रेड्डी चैनल है, और भी इस तरह के और भी चैनल्स हैं, इन्होंने जो रीजन और साइंस को जिंदा रखा इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, आप सब लोगों को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ। अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, वो है पैंडेमिक, जिसके दौरान WHO ने जो फ्लिप फ्लॉप किया, यानी कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी हाँ कभी ना वाला जो कहानी उन्होंने पूरा किया, इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और इसके खिलाफ जो जो अनसाइंटिफिक अप्रोच जो WHO और CDC ने लिया था, उसके खिलाफ बहुत पहले, लास्ट ईयर की बात है, 2020 में ही एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, ग्रुप ऑफ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, वेरी वेरी रेप्यूटेड पीपल, ऐसे लोगों ने साथ आकर के एक ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें कि मैंने भी साइन किया था, और हमारे बनर्जी साहब ने भी साइन किया हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बैरिंगटन डिक्लेरेशन को साइन किया था, जिसमें बड़ा क्लियरली बताया गया था कि ये जो कुछ किया जा रहा है पैंडेमिक कंट्रोल के नाम पर, ये सब जो है काउंटर प्रोडक्टिव है, और वो गलत है, और इसके कारण ये पैंडेमिक रुकने वाला नहीं है, बल्कि इससे और स्थिति गंभीर होगी। और वही ऐसा ही देखने को मिला, जो हम लोगों ने 2020 में जिस चीज की खतरा हमने भांप लिया था, वो आज हमें सामने देखने को मिल रहा है। और हमने पहले भी बोला था, आज भी हम बोलते हैं कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनको खतरा ज्यादा है, जिनको बीमारी ज्यादा गंभीर हो सकती है, सिर्फ उनको ही हमें बचाने की जरूरत है, यानी फोकस प्रोटेक्शन की हमें जरूरत है, और सिर्फ उन पे ही हमें ध्यान देने की जरूरत है, चाहे उनको वैक्सीनेशन देना हो, चाहे उनका इलाज करना हो, सिर्फ उनको ही देखने की जरूरत थी। ये अगर हमने शुरू से किया होता, तो जो लोगों का, बाकी लोगों का नुकसान हुआ है, वो नहीं होता। पैंडेमिक जो है पूरा एक जो 2 साल का जो यात्रा है, जो कहानी है, उसमें आप देख लीजिए,
एक तरह का ये कहानी पूरा का पूरा फ्लिप फ्लॉप का कहानी है। मतलब कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, अगले दिन तो लोगों को बहुत ही कंफ्यूज मैसेजेस जाता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, उनको बहुत ही कंफ्यूजिंग मैसेजेस जाते हैं। इसके कारण जो है लोगों में जो है कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या था और सही गलत क्या था। और उसका हर चीज का जो कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस जो थे, उसका वो हम बोलते थे कि हमारे पास जानकारी नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? ऐसा ये नोवल पैथोजन नोवल हो सकता है जो कि मुझे उसमें भी शक है, लेकिन ये जो डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये तो हम रेस्पिरेटरी डिजीज का पूरा मैकेनिज्म जानते हैं कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कैसे उससे बचना है। पब्लिक हेल्थ में ये भी पढ़ाया जाता है कि कोई भी डिजीज आउटब्रेक होगा तो कैसे वो उसका एपिडेमिक कब जाएगा, कैसे नीचे आएगा। ये सब हम पहले से जानते हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। तो इसमें नया वायरस होने से ये नहीं हो जाता कि एकदम सारा साइंस नया हो जाता है, ऐसा ये जो बताया गया हम लोगों को वो गलत था। तो उन्होंने अपनी पूरी रिकमेंडेशंस बदली करते रहे और इससे क्या हुआ, काफी नुकसान हुआ। डिजीज भी फैलती रही क्योंकि उन्होंने इनिशियली जो स्टेप्स उठाए वो भी गलत थे, और बाद में जब डिजीज फैल गई तो उसके बाद जो ड्रैकोनियन मेजर्स उठाए वो भी बहुत ही गलत साबित हुए। तो इस तरह से देखा जाए कि आज दिन तक जो ये फ्लिप फ्लॉप मैसेजिंग आज दिन तक चल रहा है, कभी बोलते हैं तीसरा बूस्टर, कभी बोलते हैं चौथा बूस्टर भी लेने का है। आपको देख रहे हैं कि आज डॉक्टर साहब थोड़ा पूरा आवाज आवाज थोड़ा लो है बोल के मैसेजेस आ रहे अच्छा, सर। कैन यू हियर मी? या तो और थोड़ा बहुत रहे सर, अगर वॉल्यूम आप चेक करिए, थोड़ा लो दिख रहा। अच्छा सर, let me try sir, let me try. Is it okay now sir? या थोड़ा बेहतर है, थोड़ा आप थोड़ा ऊंची आवाज में। ओके सर, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना सर? या प्लीज। सो बेसिकली जो पूरा जो पैंडेमिक के दौरान जो फ्लिप फ्लॉप हुए वो शुरुआत से हुए, यानी कि जब पैंडेमिक डिक्लेयर किया तब से ही गड़बड़ चल रहा था। कब टाइमिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पैंडेमिक, जब तक वो डिक्लेयर किया तब तक 1.5 महीने गुजर चुका था। जब आपने पहली बार इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बोला, तो ऑलरेडी उसके बाद जब पैंडेमिक डिक्लेयर किया उसमें ऑलरेडी 1.5 महीने का टाइम निकल चुका था। तो इस दौरान जो पूरा वायरस सारा दुनिया भर में फैल गया, वो एक सबसे बड़ा गलती हुआ। डिक्लेरेशन का टाइमिंग में भी गड़बड़ हुआ। फिर आपने ट्रेवल एडवाइजरी, जब आप फैल गया उसके बाद ट्रेवल एडवाइजरी, यानी कि अब ये बंद करो वो बंद कर दो, ये भी एक जो इस तरह से शुरू से लेकर के केस डेफिनेशन, एसिम्प्टोमेटिक से फैलता कि नहीं फैलता, वैक्सीन, हर्ड इम्यूनिटी, आपने हर चीज बदली कर दी। पूरा जो उसका जो डेफिनेशन थी वो तक चेंज कर दी। आपने ट्रांसमिशन के बारे में बहुत गलत गलत जानकारी दी सीडीसी डब्ल्यूएचओ ने, टेस्टिंग पॉलिसीज के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर, मास्क यूज, स्कूल क्लोजर, सोशल डिस्टेंसिंग, सब इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा गलत जानकारी दी गई, जिसके कारण बहुत दिक्कत हुई। और आप देखें कि पैंडेमिक रुका भी नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ, इस सब मैसेजिंग जो रॉन्ग होता है, इसके कारण कांस्टेंट सोर्स ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी बना रहा शुरुआत से लेके अभी तक। आपने देखा होगा कि जब ओमाइक्रॉन भी आया तब भी कितना डब्ल्यूएचओ ने डराया कि ये ऐसे करके पूरा दुनिया में बहुत जल्दी फैलेगा, बहुत तेजी से फैलेगा, इसका भी पता नहीं है, विरुलेंस भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लोग मर भी सकते हैं बहुत ज्यादा। जबकि उनको साउथ अफ्रीका से पता चल चुका था कि ये वायरस ज्यादा घातक नहीं है और इसमें जो है लोग ज्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, ना ही उससे मर रहे हैं। तो अभी देखिए आप, पहले स्लाइड से आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो है मई 5 2020, वो पहले सबसे पहले तो डिसमिस करते हैं कि वुहान लेबोरेटरी से कुछ भी कोई ऐसा कोरोना वायरस निकला था कि नहीं निकला था। बाद में अपने ही बात पे वो वापस जाकर के बोलते हैं कि कोविड 19 हो सकता है कि बाहर नेचुरली ना बना हो और वो वुहान लैब के बाहर हो सकता है कि कहीं पैदा हुआ हो। ठीक है ना? तो ये उनको डाउट, इसमें एक जगह बोलते हैं कि नहीं है वुहान लैब से, दूसरी जगह वो डाउट क्रिएट करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। तो इस तरह के मैसेजेस उन्होंने काफी दिए हैं और इसके ऊपर बहुत बड़ा एक कह लीजिए उनके रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें कि डॉक्टर फाउसी बहुत कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस देते रहे इस दौरान।
ये इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। आप देखिए 30 जनवरी से 11 मार्च के बीच में कितना वक्त होता है जिसके दौरान ये पूरा इन्फेक्शन पूरे दुनिया में फैला, और ये जो डिक्लेरेशन में डिले हुआ इसके कारण पूरा दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये देखिएगा कि अगर हम 2009 के पेंडेमिक का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 2009 के पेंडेमिक में ये जो है थोड़ा सा बहुत जल्दी कर दिया था और इसमें बहुत देर कर दी, मतलब दोनों में टाइमिंग गड़बड़ थी। 2009 के पेंडेमिक में भी और 2019 के पेंडेमिक में भी दोनों में टाइमिंग गड़बड़ कर दी इन्होंने। अभी और जो सबसे बड़ा मुश्किल जो आया वो ये था पूरे अगर पेंडेमिक का मैं अगर आपको बोलूं कि सबसे बड़ा ड्राइवर, सबसे बड़ा समस्या क्या था, वो सबसे बड़ा समस्या ये था कि इन्होंने जो केस का डेफिनेशन में ये बोल दिया कि जिसका भी कोविड-19 आरटी-पीसीआर या लेबोरेटरी कंफर्मेशन हो जाता है वो केस बन जाता है, और चाहे उसको कोई भी सिम्टम है या नहीं है। और इसी के कारण ये आज दिन तक जो है ये पूरा का पूरा पेंडेमिक आज भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये जो है कोई भी आदमी को सिम्टम नहीं है लेकिन आरटीपीसीआर पॉजिटिव तो केस कहलाता है। इसीलिए आज दिन तक ये इसी इसी के आधार पे इन्होंने वैक्सीन का इतना ज्यादा जो है प्रचार किया और वैक्सीन को इतना ज्यादा प्रमोट किया, क्योंकि बोलते बहुत बड़ा नंबर है। नंबर कुछ नहीं है, ये बेसिकली आरटीपीसीआर पॉजिटिविटी इज नॉट अ डिजीज, this is only a sign of infection, and now that it is present everywhere, everybody is going to test positive. एक जो इन्होंने और एसिम्प्टोमेटिक कोविड स्प्रेड के ऊपर भी बहुत गलत धारणाएं पहले दी। पहले बोले कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिट कर सकता है एक दूसरे आदमी को, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। ये WHO ने खुद ही बोला कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड इतना आसानी से नहीं होता है और बहुत ही रेयरली करता है। तो इसके बाद फौसी साहब बहुत नाराज हुए और उन्होंने बोला कि नहीं ये तो गलत है और एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो इनका WHO CDC का कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहा। इसके दौरान काफी गलत धारणाएं आई कि इससे होगा कि नहीं होगा। मास्क के ऊपर तो आप मतलब इतनी ज्यादा गलत मैसेजिंग हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं है कि पहले उन्होंने बोला जनरल पब्लिक को किसी भी तरह का फेस मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, उसको फिर पूरा का पूरा CDC ने दोबारा से रिवर्स कर दिया और दोबारा से WHO ने फिर बोल दिया हाँ हाँ अब तो जरूरत है मास्क पहनने का। तो ये भी बहुत ही गलत मैसेजिंग मास्क के ऊपर गई। और अब आप देखिए ये फौसी एक जगह बोलते हैं कि मास्क गाइडलाइंस जो वैक्सीनेट हो गए हैं उनको भी पहले बोलते हैं नहीं चाहिए, फिर बोलते हैं कि नहीं अब तो वैक्सीनेट होने के बाद भी आपको मास्क का जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से इनके जो आप देखेंगे जो मैसेजिंग है इतनी मिक्स्ड मैसेजिंग या गलत मैसेजिंग रही कि हर बार उन्होंने एक बार कुछ और बोलते हैं अगली बार कुछ और बोलते हैं। तो और एक बार बोलते हैं कि अगर मास्क जो है जरूरी भी है और दूसरी तरफ फौसी साहब ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली मास्क इफेक्टिव नहीं है ये वायरस को बाहर रोकने में। तो इस तरह से लोगों को बहुत ही कंफ्यूज रखा है इस पूरे पैंडेमिक के दौरान इन WHO और CDC ने। फिर आया कि टीचर्स को स्कूल खोलने की बात आई तो उन्होंने बोला कि टीचर्स को वैक्सीनेट होना चाहिए, तो जो वैक्सीनेटेड टीचर्स हैं उनको मास्क का जरूरत नहीं CDC ने बोला। फिर थोड़े दिन बाद अपना उन्होंने पूरा रिवाइज करके बोल दिया कि नहीं नहीं अब तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को मास्क भी पहनना पड़ेगा और वैक्सीन भी लगाना पड़ेगा। इस तरह से उनको स्कूल का तभी खोल सकते हैं और बच्चों को भी जो है वैक्सीन देने का बात इसीलिए हुआ। अब ये CDC ने फिर बाद में बोल दिया कि जी अब जरूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन हो तभी खोला जाए। तो इस तरह के जो बहुत सारे, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि जो टीचर यूनियन था उन्होंने भी काफी प्रेशर डाला CDC पे, तो इनके हिसाब से इनका जो है वो डिसीजंस बदलते रहे बार बार। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूज मैसेजिंग मास्क के ऊपर भी की गई और वैक्सीनेशन के ऊपर की गई। अब आप देखेंगे एक छोटा सा ग्राफ में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यूएस की अलग अलग स्टेट्स का है और इसमें आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है वो जो ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने मैंडेट नहीं रखे हैं, मास्क मैंडेट्स नहीं रखे हैं, और जो काली लाइन है उसमें है मास्क मैंडेट जिन्होंने रखा है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का ग्राफ बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसने मास्क मैंडेट रखा है या मास्क मैंडेट नहीं रखा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि मास्क से कोई भी पैंडेमिक यहाँ पे रुका नहीं है। फाउसी साहब ने फिर दोबारा से बोला कि मास्क नहीं डबल मास्क लगाइए और ये करके इस तरह से उन्होंने बोला।
तो ये जो है चलता रहा, कभी मास्क नहीं लगाना, कभी लगाना तो डबल लगा देना है, तो इस तरह का उन्होंने न्यूज हमेशा चला के रखा। जबकि डेल्टा वेरिएंट था उसके टाइम में भी इन्होंने काफी जो है मिक्स मैसेजिंग किया। फौजी साहब बोलते हैं कि एक बार बोलते हैं कि केसेस बहुत बढ़ता है, डिस्टर्बिंग लेवल पे जाता है, तो अभी इसके बाद सर्ज आएगा, और एक्चुअली जब वो देखा गया तो वो सर्ज नहीं आया। इसी के बाद जो है मतलब डराने का पूरा कार्यक्रम किया गया। और फौजी साहब बोलते हैं कि सीडीसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, वो वायरस चेंज हुआ इसके कारण ये फ्लिप फ्लॉप हुआ। अब इमेजिन एवरीथिंग इज बीइंग ब्लेम्ड ऑन टू द वायरस, they are not taking responsibility for anything that they are not doing correctly। और इसी तरह से जो टेस्टिंग फॉर एसिम्प्टोमेटिक, पहले बोलते हैं हम इनको जरूरत नहीं है इस एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग का, बाद में कहीं से प्रेशर आता है तो फिर वो टेस्टिंग फिर से शुरू हो जाता है। तो इन्होंने इतना ज्यादा ये पूरे पैंडेमिक कंट्रोल के अंदर जो है पूरा गड़बड़ किया है, पूरा वो मैसेजिंग गड़बड़ किया है, पूरा पॉलिसीज बार बार चेंज किया है। तो क्योंकि इनके पास एक्चुअली साइंस था ही नहीं, ये सारा अनसाइंटिफिक तरीके से ये डिसीजंस लिए जा रहे थे। तो पहले बोलते हैं हवा में ये ट्रांसमिट नहीं होता है, फिर बोलते हैं कि अब ये होता है। तो ये पूरा का पूरा मतलब जो है एक बार बोलते हैं कि नहीं अब ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं है, फिर कुछ दिन बाद उसको बोल देते हैं कि नहीं तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। इस तरह से भी इनकी पॉलिसीज ट्रांसमिशन के ऊपर भी काफी फ्लिप फ्लॉप रही और चेंज होती रही। और ये इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को जो जिनको किसी कोविड पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट होता है उसको टेस्टिंग करना है कि नहीं करना है। तो एक बार वो ड्रॉप करते हैं, अगली बार जब प्रेशर आता है तो फिर दोबारा से उसको रीइंस्टेट कर देते हैं कि नहीं अब फिर से दोबारा से टेस्टिंग करो। और ये मैं आपको पहले से ही बता दिया कि ये जो है वायरस जो है ट्रांसमिट एयर के थ्रू भी हो सकता है, ये भी उन्होंने बार बार उन्होंने बताने की कोशिश की। इस तरह से उनका पूरा का पूरा जो है चलता रहा, जब फ्लिप फ्लॉप चलता रहा डब्ल्यूएचओ का, सीडीसी का। और आज वो खुद ही कहते हैं कि लॉकडाउन्स जो है वो अच्छे नहीं थे या वो खराब थे लॉकडाउन्स। नाउ डब्ल्यूएचओ आल्सो सेज कि कोविड-19 लॉकडाउन्स वर बैड। So you can understand that they have described these lockdowns as terrible, ghastly global catastrophe। और उन्होंने क्लियरली बोला कि लॉकडाउन से सिर्फ एक ही चीज होता है, दैट इज मेकिंग पुअर पीपल एन ऑफुल लॉट पुअरर। ये डब्ल्यूएचओ के खुद के वर्ड्स हैं, आप सोच लीजिए। एंड दिस इज अक्टूबर 2020। तो फिर भी उसके बाद भी अगर कहीं लॉकडाउन लगा है तो आप सोच सकते हैं कि देवर अगेंस्ट दी कंप्लीट नॉर्म्स। तो पहले जब इन्होंने ही खुद ही सजेस्ट करते हैं कि बहुत अच्छी चीज है लॉकडाउन से ही होता है, वो कहां से शुरू हुआ? वुहान से शुरू हुआ, चाइना से शुरू हुआ। चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया, सबको बंद कर दिया, तो वो ही दुनिया ने पूरी तरह से फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सब लोग इतना मरेंगे कि वो सड़क पे लोग मरने लग जाएंगे। इस तरह का जो पेंट किया गया पिक्चर, इसके कारण ये सारा हुआ लॉकडाउन का कहानी। अभी मैं आपको छोटा सा रीसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ। जब बाइडेन साहब इलेक्ट होकर के आए और उन्होंने बोला कि अब तो ये हमारे से कंट्रोल नहीं होगा। पहले तो ट्रम्प को बहुत गाली दिया गया कि नहीं, इसने बहुत ही बेकार ढंग से कंट्रोल किया कोविड को, पैंडेमिक बहुत ही बेकार ढंग से कंट्रोल किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब खुद आए और केसेस बढ़ने लग गए और इतने ज्यादा हो गए कि जब वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोल दिया कि अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फेडरल के पास, अब स्टेट अपना अपना तरीके से मैनेज करेगा। और उसी को हमने कॉपी करते हुए इंडिया में भी वही चीज किया कि पहले हमने सेंट्रल कंट्रोल रखा, फिर धीरे 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 सारा का सारा जो है उठा करके हमने इसके हाथ में दे दिया, पूरा का पूरा जो है स्टेट्स के हाथ में दे दिया। और आपको ये तो पता ही होगा कि ओमाइक्रॉन के ऊपर जो क्वारंटीन की जो पॉलिसी थी वो भी इन्होंने जो है 24 घंटे के अंदर उलट पुलट कर दी। पहले बोलते 10 दिन रहेगा, फिर बाद में बोलते 5 दिन ही काफी है। तो इस तरह से जो है काफी जो चेंजेस की अपनी पॉलिसीज के अंदर बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के, ये बहुत ही गलत मैसेजेस लोगों में गए। आइसोलेशन पीरियड उन्होंने 10 दिन से 5 दिन घटा दिया। उसके लिए कारण क्या बताया? बोला कि नहीं, लोग इतना दिन तक नहीं रह पाएंगे जो एसिम्प्टोमेटिक है, इसलिए हम कर रहे हैं। साइंटिफिक बेसिस कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ये बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर तकलीफ हो रहा है, इसलिए उन्होंने कम कर दिया। तो काफी हद तक जो डिसीजंस थे वो बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के, बिना किसी उसके थे, कई बार पॉलिटिकल थे, कई बार वो बिना किसी सोचे विचारे थे। ये गड़बड़ हुआ पूरा का पूरा।
और आपको तो ये पता ही होगा कि 31 दिसंबर को सीडीसी ने बोल दिया कि अब ये पीसीआर टेस्ट जो हम करते हैं कोविड के लिए वो हम विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये कोविड और फ्लू के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तो नए टेस्ट आएंगे मल्टीप्लेक्स टेस्ट, वो दोनों इस दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर पाएगा। ये अभी आपको पता ही होगा, 31 दिसंबर हमने पिछली बार भी शो किया था टेस्टिंग के ऊपर, तब आपको ये बताया था। और ये बाद में कि पहले बोलते थे कि जब आपका 10 दिन का आइसोलेशन खत्म हो जाता है तो दोबारा से टेस्टिंग करिए, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। अगर नहीं टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर से आपको 7 दिन और देना पड़ेगा। लेकिन बाद में इन्होंने फिर चेंज करके कर दिया कि अब बाद में पीसीआर टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि हम लोगों को तो ये बहुत पहले से पता था कि आरटीपीसीआर आपका 3-3 महीने तक पॉजिटिव रह सकता है, जबकि आपको कोई बीमारी नहीं है। नाउ बेसिकली अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है, आपको पता ही है, और धीरे धीरे ये सच के कारण ही लोगों को समझ में आ रहा है कि जो कुछ उनके साथ किया गया वो एक बहुत बड़ा घपला था। और आपको ये मैं बता दूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि जो कोविड वैक्सीनेटेड कोविड डेथ्स हैं वो 5 टाइम्स आर लार्जर देन द अनवैक्सीनेटेड कोविड डेथ्स। हुआ क्या है कि लोगों को सबको वैक्सीन लगा दिया गया, बहुत कम लोग रह गए जिनको कि वैक्सीन लगाए ही नहीं है। अब जो वैक्सीनेशन से बचना चाहिए वो तो बचे नहीं, वैक्सीनेशन से बल्कि उल्टा डेथ्स बढ़ जा रहा है। ये चीजें अभी जो है हम धीरे धीरे पूरे दुनिया में ही देख रहे हैं पैटर्न कि जो वैक्सीनेटेड है तो उनका डेथ ज्यादा हो रहा है। तो नाउ इट इज ऑलमोस्ट बिकम अ पैंडेमिक ऑफ द वैक्सीनेटेड, नॉट द अनवैक्सीनेटेड। सिर्फ वैक्सीनेशन और कोविड ही सिर्फ समस्या नहीं है। अगर आप ये डाटा देखेंगे यूएस के अंदर का, तो आप देखेंगे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, सुसाइड, होमिसाइड, ड्रग ओवरडोज, ये जो है आप देख रहे हैं लाइक कोविड से जो समस्या है इन एज ग्रुप्स में, उससे 10 गुना समस्या 5 से 14 साल के बच्चों में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स है। यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट्स, 10 गुना जो है ड्रग ओवरडोज से बच्चे 15 से 24 के बीच में खत्म हो रहे हैं कंपेयर टू कोविड। तो कोविड सिर्फ एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं जिनको हमने बिल्कुल भी भुला दिया है, आज हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। अब ये मैं आपको फिर से एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जिसमें दिखाया गया है कि आखिर आपको जो इन्फेक्शन होता है कोविड का, उससे हमें कितना रिडक्शन मिलता है, उसमें हमें कितना कमी देखने को मिलता है, और किस ग्रुप में कितना कमी देखने को मिलता है। अब आप देखिए, अगर वैक्सीन बहुत अच्छा काम करता तो उसका जो इन्फेक्शन रिस्क रिडक्शन है सबसे अच्छा होना चाहिए था। यानी कि जो सबसे ऊपर वाला लाइन है वो सबसे ज्यादा रिस्क रिडक्शन कर रहा है, यानी इन्फेक्शन को रोक रहा है। तो ये जो होना चाहिए था, किसका होना चाहिए था? वैक्सीन का होना चाहिए था, पर वो नहीं है। वैक्सीन का रिस्क रिडक्शन सबसे कम है, उससे ज्यादा रिस्क रिडक्शन है वो है पुराना प्रायर नेचुरल इन्फेक्शन, विच इज ऑलमोस्ट यू कैन से डबल और ट्रिपल ऑफ व्हाट द वैक्सीन प्रोवाइड्स। सो हमने तो ये पहले से ही बोल दिया था कि 5 से 6 गुना या 10 गुना जो है ज्यादा प्रोटेक्शन या ज्यादा सॉलिड इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से मिलती है। ऑफ कोर्स अगर नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया और वैक्सीन भी ले लिया तो ऑब्वियसली आपको एक तरह का बूस्ट मिल जाता है। एक नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया और वैक्सीन भी ले लिया तो उसका कवरेज जो है, उसका इन्फेक्शन का रिस्क है वो सबसे कम हो जाता है। कोविड वैक्सीन ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी के बाद तरीके से लाया गया पूरे दुनिया के सामने, लेकिन ये सबसे बड़ी फेलियर स्टोरी भी आज की तारीख में नजर आ रही है, क्योंकि वैक्सीन को इतना जल्दी बिना टेस्ट किए, बिना साइंस के, बिना एडिक्वेट टेस्टिंग के लॉन्च कर दिया गया, और वो भी लॉन्च मैसिव तरीके से पूरी दुनिया को कवर करते हुए, जहां कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं रह गया। हमें यही नहीं पता लगेगा कि आखिर लोग जो है मरेंगे किससे। अभी इसके बाद जो कोई भी मरेगा वो क्या क्या बोला जाएगा कि वो कोविड से मर गया, और जो बच गया उसको बोला जाएगा वैक्सीन से मर गया। ये सबसे बड़ा गलत एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन के ऊपर किया गया कोविड वैक्सीन का। अब आप देखिए इस स्लाइड में कि WHO खुद ही बोलता है कि कोई भी जो कंट्री है वो बूस्ट करके या बहुत सारे बूस्टर्स लगा करके इस पैंडेमिक से नहीं निकलता, और ये बिल्कुल सही बात भी है। अब आप देखेंगे इजराइल, आज इजराइल ने चौथा बूस्टर भी लगा दिया, लेकिन आज इजराइल का जो पर कैपिटा जो केस का रेट है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और अब आप देखेंगे कि ये जो वैक्सीन बनती हैं वो जनरली ट्रेडिशनली आप देखेंगे इसके थ्रू गुजरती है। पहले उनके ऊपर रिसर्च होती है, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल, तब जाके लॉन्च होती है। यानी मिनिमम 5 साल लगते हैं लॉन्च होने के में।
अब आप देखिए कि हमारी जो कोविड-19 की जो थी वो लेस देन 1 ईयर 6 मंथ्स के अंदर या 8 महीने के अंदर ही लॉन्च हो गई। फेज 1, फेज 2, फेज 3 को उन्होंने कंबाइन करके जल्दी-जल्दी में कर दिया कि इससे हमारा पूरा पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि ये होने के बजाय फायदा, इसका नुकसान और बढ़ रहा है। ऊपर से ये लोग अभी क्या कर रहे हैं कि और नया वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं कि अभी हम नया वैक्सीन बनाएंगे, ओमाइक्रोन के अगेंस्ट बनाएंगे, एक पैन कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाएंगे। ये बिल्कुल अननेसेसरी है, अनसाइंटिफिक है। लेकिन धीरे धीरे साइंस अपना रास्ता ढूंढ लेता है, और WHO ने भी अभी अब चीज मान ली है, और बाकी दुनिया भी धीरे धीरे मान रही है कि ओमाइक्रोन, जो कि इन्होंने पहले बहुत बड़ा खतरा बताया था पूरे दुनिया के लिए, वो ही शायद हमारे लिए एक रास्ता सबसे अच्छा नजर आ रहा है आज की तारीख में। ये जो वैक्सीन जिसके बारे में आपको अभी बोल रहा था, ये वैक्सीन एक्चुअली हार्मफुल थी, और ये डेटा पहले से मौजूद था। अब आप अगर ये फाइजर ट्रायल्स देखेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं, डॉक्टर बनर्जी भी बात कर चुके हैं, उसमें कितना गलत गलत ढंग से उसका डेटा उन्होंने मैनिपुलेट किया, कितने विसल ब्लोअर्स थे, उन्होंने ये पूरी चीज बताई कि वहां पे जो ट्रायल्स हुए वो ढंग से नहीं हुए। और अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियर लेवल 1 एविडेंस ऑफ हार्म, क्लियर एविडेंस ऑफ हार्म था। एडवर्स इवेंट्स का, सीरियस एडवर्स इवेंट का, इवन डेथ्स, जो वैक्सीनेटेड ग्रुप था उसमें कहीं ज्यादा डेथ्स थी, प्लेसिबो ग्रुप में कम डेथ थी, जबकि प्लेसिबो का साइज इससे ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कितना ज्यादा हमने इस वैक्सीन के साथ जो है खिलवाड़ किया। अब ये क्लियरली साबित हो रहा है कि वैक्सीन्स हैव फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड, एंड वैक्सीन फेलियर इज सो ग्लेयरिंग दैट इट इज स्टिल शॉकिंग दैट अभी भी लोग जाके ले रहे हैं, शायद उनको जानकारी अभी तक नहीं मिला है। अदरवाइज कोई भी वैक्सीन सेंटर पे कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा, उनको ये सारा डेटा उनको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाए, जो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। अब आप इसी से समझ सकते हैं ना कि 2020 में जो पेंडेमिक था उसमें पूरे का पूरा दुनिया में सिर्फ 70 मिलियन केसेस हुआ 2020 में। जब वैक्सीन लॉन्च हुआ 21 के जनवरी से, उसके बाद से 240 मिलियन इन्फेक्शंस हो चुके हैं। नंबर ऑफ डेथ्स हैव इंक्रीज्ड इन 2021। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही है, उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है। और हम फिर अपना इंडियन गवर्नमेंट इस तरह से जब ये इस तरह का इश्तिहार और इस तरह का एडवर्टीजमेंट निकालता है, तो बहुत दुख होता है कि हम बहुत बड़ा बड़ा कि हमने 124 करोड़ लोगों को, अब तो 165 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ये लेटेस्ट डेटा है जो। तो क्या ये, अगर ये ही वैक्सीन ही हमें बचा लेती तो फिर बाकी दुनिया को प्रॉब्लम क्यों होती वैक्सीन से? तो हमें ये चीज अब समझ जानी चाहिए कि अब ये वैक्सीन का जो डेटा हम यहाँ दे रहे हैं, ये किसी भी तरह, आज ये लोग बोलते भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, इस वैक्सीन के कारण हमारा जो तीसरा वेव है इसमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हैं लोग, और उसके कारण डेथ नहीं हो रहा। ये नहीं कारण है, ये कारण बिल्कुल भी नहीं है। कारण है जो नेचुरल इम्यूनिटी से 70 से 80% जनता को पहले से नेचुरल इन्फेक्शन हो रखा है, उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके कारण डेथ नहीं हो रहा है। और क्रेडिट किसको मिल रहा है? वो मिल रहा है वैक्सीन को, रॉन्ग क्रेडिट मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना मामले में गिरावट की, जब भी लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, जब भी लगता है पैंडेमिक के बारे में कुछ अच्छी खबर आ रही होती है, तो WHO कुछ ना कुछ नया चीज निकाल देता है, एक नया वेरिएंट का नाम निकाल देगा। जैसे कि ओमाइक्रोन का भी एक नया वेरिएंट निकाल दिया, फिर उसके और एक नए वेरिएंट की बात करते हैं, कुछ इस तरह का कह देते हैं जिससे कि लोगों में खतरा, लोगों में जो डर है वो बाकायदा बरकरार रहे। ये चीज अच्छी नहीं है। और अब आप देख रहे हैं इंडिया का भी, अगर आप देखेंगे तो जो ओमाइक्रोन वाला है, अभी ऑलरेडी उसका जो R0 है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। आज का काउंट ऑलरेडी हमने देखा है वेल बिलो 2 lakhs। सो दिस नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि लोगों में एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, डेथ्स कम हो रही हैं। तो ये चीज समझने वाली है कि अभी हमें डराने की जरूरत नहीं है लोगों को भरोसा देना है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि अभी हम पैंडेमिक के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं।
और ऐसे में जब ऐसी खबरें आती हैं तो बहुत दुख होता है कि DCGI अप्रूव्स ट्रायल्स फॉर इंट्रानेजल बूस्टर डोज। क्या जरूरत है अननेसेसरली इन चीजों का? अब आप देख लीजिए 86% हॉस्पिटल बेड खाली पड़ा है हिंदुस्तान के अंदर। उसके बावजूद भी हम नया वैक्सीन, नया तरह का वैक्सीन का बातचीत करते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप देख लीजिए कि ज्यादातर लोग जो एडमिट भी हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो लोग हैं जिनमें से कि ज्यादातर लोगों ने दो दो वैक्सीन लिया हुआ है। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि अभी वैक्सीन दो दो लेने के बाद भी अगर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, उसका वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। इसके बारे में तो हम लोग सुन ही चुके हैं कि ना तो ये वैक्सीन हमें इम्यूनिटी दे रही है अच्छे से, ना ही ये वायरस को रोक रही है, ना ही इससे डेथ्स रुक रही है, और ना ही ये कि आप जो है दूसरों को स्प्रेड करने से भी नहीं रोक सकते हैं। ना ही इससे आप वैक्सीन लेने के बाद मास्क वेयरिंग कम हो जाएगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर पाएंगे, ना ही हमारा ट्रेवल बैन के ऊपर भी कोई इस पे असर पड़ने वाला है। तो ये सब चीजों का कोई अभी वैक्सीन का आप देख लीजिए तो कोई भी औचित्य नजर नहीं आता, कोई भी रैशनल नजर नहीं आता कंटिन्यू करने में। अब आज की तारीख में ये हो गया है कि अब ये पैंडेमिक फुली वैक्सीनेटेड लोगों का पैंडेमिक बन चुका है, यानी कि जो लोगों को बहुत ज्यादा वैक्सीन लग चुका है ये उनका ही पैंडेमिक बन चुका है। तो पूरे दुनिया में जहां भी चले जाइए हॉस्पिटल में अभी जो लोग मिलेंगे उनमें से ज्यादातर लोग डबल वैक्सीनेटेड, ट्रिपल वैक्सीनेटेड हैं। कई जगह तो 4 वैक्सीन ले चुके हैं इसराइल जैसे कंट्री में। तो अब क्यों हम इस वैक्सीन को बंद क्यों नहीं करते, ये आप भी मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। सो अब एक डॉक्टर बोशे हैं जो वैक्सीनोलॉजिस्ट है, वायरोलॉजिस्ट है, उन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात कही है। साइंटिफिकली स्पीकिंग देयर इज नो रैशनल व्हाटसोएवर टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन अगेंस्ट SARS-CoV-2, ऑन द कॉन्ट्ररी इट मे बी हार्मफुल। और यही बात हम लोग भी इतने दिनों से यही बात कह रहे हैं कि बच्चों में भी एक्सपोजर 70 से 80% बच्चों में हो चुका है नेचुरली। तो अभी हमको उनको कोई भी वैक्सीन देने का कोई जरूरत नहीं है, अगर देते हैं तो नुकसान होने का खतरा है। और जो हमारे यहाँ 15 से 17 लोग जो उम्र के लोगों को दिया गया वैक्सीन बच्चों को, उसपे हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ बच्चों का मौत भी हो गया है जो एडवर्स इवेंट से। वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही सैड चीज है, जो बहुत ही खराब चीज है, ट्रेजिक चीज है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये दुनिया भर में ऐसे हो रहा है कि अब आप रेड जो दिखा रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो सेकंड या 2 डोजेस या 3 डोजेस वैक्सीनेटेड हैं, और जो जिनको एक डोज लगा है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, उनका देख लीजिए नंबर कितना कम है। और ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का है जहाँ पे कि अभी और भी ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगाई जा रही है। तो ये कोई रास्ता नहीं है, वैक्सीन कोई रास्ता नहीं है इस पैंडेमिक से निकलने का, बल्कि वो प्रॉब्लम है इस पैंडेमिक में और फंसने का। CDC ने भी अब तो ये मान लिया है कि अब ये जो वैक्सीन हैं दिस इज अ एंडलेस ट्रेडमिल ऑफ इंजेक्शंस। सो दे बेसिकली जैसे ही आपका 2 वैक्सीन लग गया तो बोलते हैं कि नहीं अभी तो 2 काफी नहीं, एक और लगाइए। एक लग गया उसके बाद बोलेंगे ईयरली लगाइए। तो ये ऐसा एक ऐसा ट्रेडमिल है जिसपे आप हमेशा चल नहीं सकते। और ये बताया गया है कि WHO ने भी बोला है कि सारी दुनिया को बूस्टर लगा नहीं सकते हम सब लोगों को। तो ये चीजें अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी जो मुझे तकलीफ होती है वो ऐसे जो लोग हैं बिल गेट्स, जो कि शायद इस पूरे पैंडेमिक को एक तरह से पीछे से ड्राइव कर रहे हैं, पूरा इनके इशारों पे चल रहा है। तो अभी वो कभी कभी ऐसा जब लोगों को लगता है, थोड़ा होप होने लगता है, लोगों को लगता है कि अच्छा थोड़ा सा अभी माहौल अच्छा हो रहा है, लोग अपना थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं, उसी टाइम में ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि जैसे ओमाइक्रोन निकलेगा तो कोई नया सीजन जो है मोर लाइक सीजनल सीजनल फ्लू हो जाएगा। तो इनको ऐसे लगता है जैसे पहले से सारा जानकारी है। फिर कभी कभी बोल देंगे कि नहीं इससे भी खतरनाक एक पैंडेमिक आने वाला है। मतलब आप एस्ट्रोलॉजर का भी काम कर रहे हैं, ना तो आप साइंटिस्ट हैं ना पब्लिक हेल्थ वाले हैं। तो आप इस तरह का बात करके दुनिया को, जस्ट बिकॉज यू आर ए बिलियनर एंड पीपल हियर यू doesn't mean that you are entitled to hear such useless views. Either he knows everything, that means he is driving the whole pandemic. तो ये बहुत बड़ा जो है इस तरह का जो बातचीत करते हैं जो दुनिया सुनती है, वो अच्छी चीज अच्छा मैसेज नहीं जाता है। हमको ये भी बताया गया कि आप लोग सब बच्चों को वैक्सीन दे दो,
क्योंकि वैक्सीन जो है अगर हम नहीं देंगे तो बच्चे सुपर स्प्रेडर्स हैं, वो अपने एल्डरली लोगों को वहां से जो है ये जो इन्फेक्शन है अपने दादा दादी को, नाना नानी को देंगे और उससे वो उनके एल्डरली लोग मर जाएंगे। तो बच्चे का ड्यूटी नहीं है कि वो एडल्ट्स को सेफ रखे, ये एडल्ट्स का ड्यूटी है कि बच्चों को सेफ रखे। और हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि नूरेम्बर्ग कोड जो है आर्टिकल 6 सेक्शन 3 में कोई भी गवर्नमेंट मैंडेट नहीं कर सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकती है जब तक कि इंडिविजुअल का कंसेंट नहीं है। आप किसी को वैक्सीन जबरदस्ती नहीं लगा सकते उसकी मर्जी के खिलाफ। ये चीजें क्लियर हैं और ये चीजें रुकनी चाहिए। जब तक इंडिविजुअल खुद नहीं मांगता है कि मुझे वैक्सीन चाहिए, उसको वैक्सीन आप नहीं लगाना चाहिए। नेचुरल कॉज डेथ, ये बहुत अच्छा एनालिसिस एक हमारे आईआईटी के प्रोफेसर भास्करन साहब हैं, उन्होंने किया है। और देखिए 2019, 20, 21, 19 में ब्लू लाइन है, येलो लाइन है 2020 एंड 21। नेचुरल कॉज डेथ यूएस में, जो कि हम बोलते हैं कि बढ़ना नहीं चाहिए था, क्यों बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, जिसके इसके बाद तो जुलाई के बाद तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है साइट के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं वो तरह तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है, जैसे कि मायोकार्डाइटिस है, हार्ट का बीमारी है, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। खेल के मैदान पे स्पोर्ट्स पर्सन वो लोग वहां पे कोलैप्स कर रहे हैं। आप सोचिए बच्चों में ये हार्ट का बीमारी पैदा कर रहा है, बहुत सारी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा है, लोग उससे मर रहे हैं। तो ये जो नेचुरल जो कॉज ऑफ डेथ है ये इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है 21 में हमने क्या ऐसा कर दिया यूएस के अंदर? इसका मतलब क्या किया हमने? सिर्फ वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया है 2021 के अंदर, और ये ही इसका कारण है। इसलिए हमको समझ जाना चाहिए कि वैक्सीन इमीडिएटली हॉल्ट करने की जरूरत है। अब मैं आपको एक की मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन जो किया गया था, वो जो है बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगर हम जितना जल्दी इस चीज को मानेंगे उतना जल्दी हम इस पैंडेमिक से बाहर आएंगे। इसमें बड़ा क्लियरली कि जिनको गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है, यानी ऑल हेल्दी एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, दे मस्ट बी अलाउड टू रिज्यूम लाइफ एज नॉर्मल। उनको इमीडिएटली अपना सारा लाइफ का एक्टिविटीज वापस शुरू करने का इजाजत देना चाहिए। और सिंपल हाइजीन मेजर्स, जब कोई बीमार पड़ जाता है वो आप घर में आप कर सकते हैं, और जो है सिक को आपने घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करनी। ज्यादातर लोग घर में ठीक हो जाते हैं। स्कूल यूनिवर्सिटीज को इमीडिएटली खोल देना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज को इमीडिएटली रिज्यूम करना चाहिए। लो रिस्क एडल्ट्स को पूरा तरह से काम करने को देना चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे घर से बाहर हो। और सारी बिजनेस, सारे रेस्टोरेंट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सारी एक्टिविटीज को हमें वापस रिज्यूम करना चाहिए। और अगर कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा रिस्क होती है, अगर वो फिर भी करना चाहते हैं तो अपना वो मास्क लगा के ये सब चीजें भी कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। और अपना अगर वैक्सीन उनको लेने की जरूरत है तो ऐसे लोगों को जिनको रिस्क ज्यादा है सिर्फ उनको वैक्सीन दी जा सकती है, क्योंकि उस वैक्सीन अभी भी रिस्की है, उन लोगों के लिए भी रिस्की है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये वापस पूरा का पूरा हमें जिंदगी में लौटना बहुत जरूरी है, तभी ये पैंडेमिक से हम आगे बढ़ सकते हैं। In the end, I think Reddy Saab would like to speak on this later on, but I just want to introduce that इस पैंडेमिक को ड्राइव करने वाली 3 ही एजेंसीज हैं। एक तो है पॉलिटिक्स, दूसरा है प्रेस, और तीसरा है फार्मा। फार्मा इज द प्राइमरी फंडर जो फंडिंग करती है, वो प्रेस को भी फंड कर रही है, पॉलिटिक्स को भी फंड कर रही है, और वहीं से डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस पूरे पैंडेमिक के बारे में। और ये जो तीनों इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो नहीं चाहती है ये किसी भी तरह से ये जो है पैंडेमिक रुके या आगे चलता रहे। तो जब तक ये चलता रहेगा इनको फायदा होता रहता है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया, साइंस रुकती नहीं है, पब्लिक हेल्थ जो सच्चाई है वो सामने आती है। और ये जो आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट मीडिया का जो एक बहुत बड़ा बांध है उन्होंने रोका हुआ है, और इधर देख रहे हैं मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो इसको सपोर्ट कर रहा है पीछे से, और उधर जो है इतना क्राइम जो हमने किया है इसका बांध इतना ज्यादा हो गया कि अब धीरे धीरे टूटने वाला है, और ये सच्चाई सामने दुनिया के सामने आने वाली है। और ये अभी पैंडेमिक का रास्ता खुलने वाला है, हम सब लोग जल्दी से इससे आजाद होने वाले हैं। एक लास्ट में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वन डायमेंशनल पब्लिक हेल्थ कैन नॉट बी टावरिंग एक्सक्लूसिव कंसिडरेशन। मतलब कहने का है कि ऐसे लगता है दुनिया में और कोई बीमारी रह ही नहीं, सिर्फ कोविड और कुछ है ही नहीं।
टीबी नहीं है, डायरिया नहीं है, मलेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, एचआईवी नहीं है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हेल्थ में एक ही काम है, हमको हुआ है कोविड। ये जो बताया गया ये गलत है। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो है वो पैनिक क्रिएट करने का जो उनका था और हमारे जो ह्यूमन राइट्स थे, इन दोनों में बहुत ही विरोधाभास आया। और अभी हमको ये समझने की जरूरत है कि अब इमरजेंसी नहीं है कोई भी कोविड की, और हमको धीरे से अभी ये वापस अपनी जो है नॉन इमरजेंसी स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में आने की जरूरत है। लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो इसके ऊपर बात करते हैं, जो पेंडेमिक के बारे में शुरू से अभी तक बोलते आए हैं कि जो कुछ ये गलत पॉलिसीज हैं इसके खिलाफ बोलते आए हैं, इनको लोग इग्नोर करते हैं। महात्मा गांधी ने बोला था कि अगर आप सच के साथ खड़े होगे तो पहले आपको इग्नोर किया जाएगा, लोग आपको आवाज नहीं देंगे, आपको कहीं पूछेंगे नहीं, फिर आपके ऊपर हंसेंगे भी कि देखो ये लोग एंटी वैक्सर है, ये लोग ऐसा बात करता है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग पैंडेमिक में ठीक हों, फिर आपके साथ लड़ेंगे भी, आपका प्रोग्राम रोक देंगे, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी क्योंकि आप सच के साथ खड़े हैं और साइंस के साथ खड़े हैं। ये हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी कह के गए। थैंक यू सर, दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। Wonderful, wonderful. I think you have really done justice. Let me just say, first they ignore you, Gandhi, Mahatma Gandhi का ही बोलते हैं. First they ignore you, then they laugh at you, then what is that name? Then you win. Then they laugh at you. Then they basically threaten you. Then they kind of कि ये जो है फिर आप जितना आपने ही है लास्ट में, जितना आपने ही है। जीत अपनी है, जीत सच्चाई की होगी। ये सच्चाई की होगी सर। Science and truth cannot be buried forever. You can fool all the time, some people all the time, and all the people sometime, but you cannot fool all the people all the time. That is for sure. वंडरफुल। तो हम महात्मा गांधी की कोट लेते हैं और वैज्ञानिक की जो हम चर्चा की, साइंस विज्ञानम, శాస్త్రీయ విజ్ఞానం నిజం నిప్పు లాంటిది, దాని తర్వాత స్వాతంత్రం. అందరూ స్వాతంత్రం కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు, మరో స్వాతంత్రం మహమ్మారి నుంచి. సో लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि हमारे को वैज्ञानिक पुष्टि हो, वैज्ञानिक विद्या, और वैज्ञानिक के बाद में वो चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो. सच्चाई की जीत के साथ में आजादी, जो आजाद लोकतंत्र में जो आजादी की हम बात करते हैं, हमको वो चाहिए. तो लोग यही चाहते हैं. हम इसी के साथ आज एक शो आज वाइंड अप करते हैं. काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था. तो मैं आई डोंट वांट टू मेडल विद द प्रेजेंटेशन which was unique, and we said why flip-flops, whether it is CDC, Fauci, America, or World Health Organization, how they have dictated and destroyed science, truth, and freedom. Now people are fighting through science and logic again here, so that truth will prevail. Once science and truth prevails, they are going to get back their freedom. So I like to end this show once again reminding you there will be a retelecast of this. I will announce the date and with a new poster. At the same time, I want you to support Dr. TSPR channels, Citizens Dr. TSPR channel, and Environment People Dr. TSPR channel. Everything in larger public interest and wonderful guests. Again, I salute them. One of the best presentations. I hope after this presentation, people should rise now. India should rise. You want me to show you again Canadian protests? I will show you. It should be how they are trying to wake up India. Bharat जागो, अपनी आजादी, सच्चाई और वैज्ञानिक विद्या जो है अपने हाथ में ही है. जो मीडिया रोज डराया रहा, और एक स्ट्रेन, और एक डरिए मत, उनको पूछिए कहां से लाया, उसको चैलेंज कीजिए, उसको बोलना मैं तैयार हूं चर्चा के लिए, कहां से आया ये. जब चाइना में कुछ होता, आप हमारे को डरा रहे? हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस क्या हुआ, मलेरिया क्या हुआ, डेंगू क्या हुआ. जब सिनेमा हॉल्स, बार एंड रेस्टोरेंट्स, होटल्स खुले हुए हैं,
आप हमारे स्कूल्स कॉलेजेस क्यों बंद करें, हमारी रोजगारी आप क्यों खत्म करें, आप ये पूछिए. You ask this media, ICMR and state to state government, central government, why are you creating fear psychosis? When something is happening in their country, why the hell you are creating trouble for us? Why don't you carry what tuberculosis, malaria, malnutrition, typhoid, dengue, are not people or youth and children dying of this? When cinema halls are open, when bars and restaurants are open, why is that you are closing schools, colleges? What the hell is happening? इलेक्शन रैली Yes, तो sir. हो रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं स्टेट इलेक्शन की रैलियां, लाखों लोग आते हैं, अपने राजनीतिक दल यहाँ से वहां से यहाँ, हमको क्या बना रहे हैं, डैश डैश डैश. आप सोचिए, पूरा इकट्ठे हो गए राजनीतिक दल, क्योंकि फार्मेसी और इंश्योरेंस से पैसा उनको मिलता है, पैसा मिलता है. वरना एक ही आवाज पूरे राजनीतिक दल, एक ही आवाज पूरा मीडिया. अभी देखिए पूरा हेडलाइंस एक ही तरह रह रहे मीडिया. इसके पहले लड़ रहे थे ये लोग, मेरी रेटिंग, आज किधर गया, क्योंकि ये पूरे फार्मेसी और इंश्योरेंस के इसमें आगे. they're all funded. Big news, they're all funded, whether political party or media. इसीलिए मेन स्ट्रीम खत्म हो गया. अब डॉक्टर TSPR चैनल्स ऐसे अतिथिगण जो आधार के साथ आपके सामने आ रहे हैं, यही सर्वाइव होगा. बोलिए सर. This is the mainstream. Where the truth is, that is the mainstream. Where science Wonderful. is, that is the mainstream media. Wonderful. Wherever there is truth, that is mainstream media. Wherever science is there, that is mainstream media. Whenever you watch these channels by these guests, when you feel you are going to get back your freedom, you are going to get back that assured freedom in a democracy, they are mainstream media. And that is what Dr. TSPR channels and all these wonderful guests have been doing to remove fear. You speak only science, logic, truth, so that your freedom will be yours. I'll just play. तो भी आप जागिए, ठंड मौसम वहां पर. Yeah, Prime Minister has gone in hiding. ऐसा ना हो हमारे देश में, राजनीतिक दल जाग जाओ, वरना लोग आएंगे रोड पे. कितने दिन बेरोजगार हो गए और बच्चों की पूरा फ्रीडम, आजादी खत्म कर रहे हैं आप. स्कूल खत्म कर चुके हैं, कॉलेज खत्म कर चुके हैं, रोजगारी बंद. लेकिन ऐसे टाइम में हमारे जियो रिच जो है, पब्लिक सेक्टर भी छोड़ा जा रहा है. कोई राजनीतिक की बात नहीं करती. इलेक्शन में ये मुद्दा ही नहीं है, स्वास्थ्य का, रोजगारी का मुद्दा ही नहीं है, जान जो गए उसका मुद्दा ही नहीं है. ये कैसा लोकतंत्र है भाई. This convoy is all about freedom. It's not only with the truck drivers, it's actually for every single person. You, me, buddy down the road. It doesn't matter. It's all about your free choice. That's what it should be. Like I said, if you're vaccinated, cool. You did it. Well, most people did it because of work, but you should do it off of free will, off of your own choice. ప్రధానమంత్రి మాట్లాడారు. చలిలో చూడండి, మంచు పడుతున్నా, వేల మంది అక్కడ మాకు స్వాతంత్రం కావాలి, కరోనాను ముగించండి, కరోనా నియమ నిబంధనలు మాకు వద్దు, వ్యాక్సిన్ వద్దు, మాస్కులు లేవు, हमको महामारी से छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए, ना मास्क चाहिए, ना वैक्सीन चाहिए. ठंडी मौसम में हजारों लोग कनाडा में, उनके कैपिटल सिटी में इस तरह के विरोध. कैपिटल हिल అంటే అక్కడ कैपिटल సిటీలో పార్లమెంట్ ఎదురుగా పెద్ద ధర్నా. మనం ఇక సైనికులను ఏ విధంగా స్మరిస్తామో అక్కడ వార్ మెమోరియల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు
So this is what we are trying to show them. Such a huge demonstration. Jagiye aap. So before we say bye, support Dr. TSPR channels. Earnestly, we need all your support, whether it is form of equipment or whatever cash donations, whatever you want. At the same time, we want you to come to the show also. We invite you. Even those who are opposing, you are most welcome to discuss, because we are here in a democracy. D means democracy. D means we discuss. D means we debate. D means we decide. Why? For democracy, for freedom. We are all here. That is why we release poster or flyers much before. One word, sir, before I play this, we say bye to India. Sukhanidra Shubharatri for the world over. Good morning, good afternoon, and good evening. Anything to say, or else shall I start this video? Sir, I think one thing that I want to say is that whatever this people like you or people who have been trying to bring the science and truth to the fore, these efforts are making a difference, and these efforts will bear some fruits. Also, you can see that the government has been forced to rethink its booster policy. Number one, the government has been forced to hold on to the vaccines for children, which otherwise they would have rolled out by now. So I think we are really making an impact, and the wrong policies will be stopped, and they will be, you can say, shelved, and they will not be brought in as the evidence is mounting against them. Wonderful. Supreme Courts, High Courts, we have presented so many scientific evidences, logic. Why are they keeping quiet? We have been asking, demanding how you have diagnosed, how you have come to a conclusion they are all COVID-19 deaths. You are paying my money, 50,000, a meager amount to all those innocent people who have died. Instead of pharmacy or insurance companies should have paid lakhs. Their lives are insured. Just one test, you are trying to see that all the comorbidities, the people who have died with other diseases or with the drug trials, they are all being termed as COVID-19 deaths, so that insurance companies escape, pharmacies escape. Why is that High Court or Supreme Court keeping quiet on this? Where is science? Where is logic? People are losing lives because there is no employment. Children are losing their faith. They are running on the roads because schools and colleges are closed. But you have theaters, bars and restaurants, lakhs of people in the rally. Politicians can travel here and there. Every political party supporting mandate, every media is carrying the same headlines. What is Supreme Court and High Court? Why they are not coming to the rescue of people? And what is the disease? Is it tuberculosis, malaria, dengue? Even WHO confirmed. Then why is that Supreme Court, High Court not coming to the rescue? Which is the disease which is killing people? Is it corona? Come on, where is the evidence? Supreme Court and High Court institute an inquiry committee. For how long? You kept quiet, because of which first dose, second dose, booster. Now they have started to vaccinate children. What is this happening? People participatory constitutional democracy under threat. I hope Supreme Court and High Court will take the call now. Yes, sir. You wanted to say something? Maybe I just want to say that, sir, in this democratic system, I think people have the last resort is judiciary, and judiciary, I think, will fail us in case they do not take suo motu cognizance of all these things happening. And if they fail the people, then I think the entire faith in such a system of judiciary will be really shaken, and it will not be good for a democratic system country like ours. Wonderfully said. Supreme Court, US Supreme Court, American Supreme Court has come to the rescue of the people there. Why our Supreme Court keeping quiet? High Court's keeping quiet. We have alternate medicines in the form of Ananda Ayurveda medicine, naturopathy, so on and so forth. But you are keeping mum. Governments not allowing them to be distributed. What is this? It is mind-boggling. People, before they come onto the roads, I hope the political parties, if you don't, there is no discussion on the floor of parliament or assemblies, people will come onto the roads, as is happening in the entire world. England, Sweden, Spain, now Canada, big demonstrations. I hope Supreme Court, when political parties, nothing is being discussed on the floor of parliament and assemblies to protect the basic structure of the constitution, fundamental rights of people, to speak science, logic with evidence, as Supreme Court, High Court should take a call. Not late now. So I'll play this before we say bye.
system got. So this is what happens. That is why we are requesting people to support us in large numbers, so that we have quality equipment and good bandwidth. Otherwise, it keeps on hanging like this. Quite difficult, sir. You know, even I found it very difficult to make the presentation initially. I told you, sir, that we are being watched and we are being harassed. See, this doesn't Fine, go sir. away. Okay. We are ready for it. There is no problem. Oh, no, no, we'll take, sir. We'll take all these things. We are ready to take anything for the sake of people. For the sake of people, we will take everything. And we are ready to take everything. What is there? Oh, Now it's playing. But before that, I have to make myself presenter. Otherwise, will not go away. We will fight with whatever we have and see to that we play, so that people can watch. People can become bold. Because it's about the case too. It's yeah. You're a nurse, you should know. Watch. Watch out. You can end this. Just say no. If you want freedom, if you want people participatory constitutional democracy to survive, you can end. Just say no. So, say no to all illegalities, unscientific methods being practiced by the world. Yes, sir, you end Say it. no to mandates. Say no to mandates. Any mandate, just say no, because your mandates. If there is a good vaccine, why should the government mandate it? We will take it. If there is a mandate, that means there is something fishy. So, say no to mandates. हम जो ना बोलिए, महामारी के जो नियम निबंध है उसको ना बोलिए. ये बोलते हैं. अब देखिए वीडियो में, మీరు నియమ నిబంధనలు, కరోనా నిబంధనలకు వద్దని చెప్పండి. మీకు కావాల్సింది స్వాతంత్రం, మీకు కావాల్సింది వైజ్ఞ విజ్ఞానం, మీకు కావాల్సింది చట్టం, ఆధారం, నిజం. మనకు కావాల్సింది స్వాతంత్రం. आपको चाहिए सच. सच कहां से आएगा? वैज्ञानिक विद्या द्वारा. और वो सच के लिए आपको आजादी, सच से आजादी मिल सकता है. So science, truth and freedom, we will stand for it. Thank you, sir. Take care. See you. Bye. Yes.